Chambal Valley is as scary today as it was when Phulan Devi made it notorious. This eerie fort is witness to the silence that pervades the land of bandits, as if holding within its all but ruined walls bloody history, indeed bloody present and bloody future. But this quietness in the air is deceptive, since those very walls also house something much less metaphoric: dacoits. Those proud sons and daughters of the soil whose ways of defying the law of the land have earned them the honorable title. बागी अगर लंगोटबंद नहीं यानी चरित्रवान नहीं है, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझते हो, तो वो न बागी है और न साधु है. Daku Lokmanya Dikshit is the oldest living dacoit in Chambal. From his current lifestyle, you couldn't tell. He says that the time-honored profession has now degenerated at the hands of those who take to rebellion for reasons other than tradition. आजकल तो जेगा पैसे लूट बेकूं, तो आजकल को जैसा जमाना भौतिकवाद बदलो तो बिन्ने बिन्ने जय समझ लो पैसे ले वो धंधो बनाए ला, जो मिलेगा सो गरीब अमीर सबको लूट लो, तो अब तो एक परेशानी सी खड़ी है गई. Once you claim to be a bagi, social norms change. You're no more controlled by the complex laws of the government. Your only authority would be the instinct of survival. G.R. Meena, the superintendent of police in Bhind, has been in the valley for only 7 months but had to quickly learn the new ropes of operation. He explained to us what dacoity really is. चंबल घाटी आज़ादी के पहले से ही डकैती समस्या के कारण दुनिया भर में फेमस रही है. पहले डकैतियां पड़ती थी, बड़े बड़े गिरोह हुआ करते थे, 50-50, 60-60 के गिरोह 1970 और उसके आसपास. लेकिन अभी पिछले 10 साल में डकैती के स्वरूप में परिवर्तन आया है. अब डकैतियां नहीं पड़ती हैं बल्कि किडनैपिंग होती है, और किडनैपिंग फॉर रैंसम. बेहड़ों में जंगलों में छुपा करके रखते हैं, कई महीने रखते हैं, यहाँ तक कि 1-1 साल 2-2 साल तक रखते हैं, और चिट्ठियाँ भेजते हैं एजेंट्स के माध्यम से. उनके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उन तक खबर पहुँचाते हैं और फिर उनसे बड़ी भारी मात्रा में धनराशि की डिमांड करते हैं. ये राशि 1 लाख रुपए से लेकर और 25 लाख 30 लाख रुपए तक हो सकती है उसकी स्टेटस के अनुसार. We stumbled upon several victims of kidnapping and some families of victims. Their kidnapped relatives had disappeared without a trace. 6 अगस्त को हमारा अपहरण हुआ था और 3 महीने 19 दिन मैं वहाँ उनके बंधन में रहा. उसके पश्चात 2,10,000 रुपये दे करके मैं वहाँ से रिहा हुआ. Every week, SP Meena goes around the villages listening to problems, and problems there are in abundance. While we listened to the police and the villagers, we had no idea that in the next chapter of our tryst with Chambal, we would soon learn that the other side of the story would sound just as authentic. As the daily grind begins, a sense of uncertainty prevails on both sides of the walls of the Bhind jail. More than 350 inmates crowd the jail, whose capacity is a mere 100. But determination among the incarcerated dacoits runs high. यहाँ से निकलने के बाद मैं फिर अपराध करूँगा. तो अभी भी आपके अंदर बदले की भावना है? नहीं, तो बदले की तो है. तो यानी कि आप बाहर निकल के भी बदला लेना चाहेंगे? हाँ, 2 लोग हैं, मारेंगे ना. मारेंगे उनको. तो क्या खबर करा दी हम लोगों ने. Inculcated in these social rebels is the powerful philosophy that what goes on out there is wrong. After all, it's not they who are to blame for the so-called crimes that they committed. यहाँ पैतृक कोई डकैत नहीं है, सब पुलिस के सताए हुए डकैत हैं. There is quite another side of the story, however, almost expectedly, especially for those of us who were accustomed to Hindi movies' portrayal of bandits. चिट्ठी लिख एसपी को. क्या लिखूं? लिख के कोई भी आदमी एक बच्ची से ब्याह करेगा तो उसकी जान ले जाएगी.
छोड़ लेना छोड़ छोड़ One of the most visible changes in Chambal after Phulan Devi, for example, is that women dacoits like Lovely Pandey, Phulan Jr. and Kusum Nayan have grown in number and power. Between the famed Chambal Valley on silver screen and the spooky Chambal Valley that we encountered, there is much difference. There are no horses, let alone carriages like these. And Phulan Devi is much more respected outside the valley than in it, since locals claim she was a mistress and little more. पेपर में सुनते रहे कि उसकी 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो फूलन जब समर्पण किया था उस वक़्त एक फटा पैंट पहने थी। जब अर्जुन सिंह जी के मंच पे आई तो पैंट कैसा था, फटा हुआ, बंदूक को दूसरे की कंधे पर रखे। इतना गैंग नहीं था कुछ जो दुनिया हल्ला कर दिया जैसे फूलन फूलन। बेसिकली ये महिला डकैत तो इनका कोई रोल नहीं है, ये कोई वेपन चलाना नहीं जानती, ना ही कोई इसमें इनका पार्टिसिपेशन रहता है। इनका बस इनका मिसयूज़ किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको, और मिस्ट्रेस की तरह ये वहाँ पर रहती हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं रहता। Whether this dual contradiction between banditry as an honorable tradition यहाँ की परंपरा है जी, चली आई अकबर बादशाह के ज़माने से चली आई यही यहाँ। and the imprisoned dacoits' admission that it was a crime जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं तब पुलिस के जाके मान रिपोर्ट कर रहे हैं तो पुलिस शासन की कोई गलती नहीं, उसमें पुलिस की क्या गलती had anything to do with Hindi films' glamorized images, we would never know. कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। But what struck us more powerfully were the similarities between image and reality. अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। शासन ने इनाम कर दिया हम पे 25,000 है। When the superintendent of police, Mr. Meena, invited us to join his team in patrolling the ravines, at first we thought he didn't really mean it. Then we couldn't believe it. Naturally, as the lights went up, so did our nervousness. कोड क्या होगा? टाइगर। नंबर 2 पे सेट रहेंगे। जब भी जहाँ किसी को कोई शंका हो जैसे ट्वाइस इशारा करें तो फर्स्ट एड का सामान, छोटी टार्च। ये जो इसी तरह के जो रास्ते हैं, रूट्स हैं, जंगल रूट्स कहलाते हैं, पगडंडी, इनको ही बेसिकली तो ये जो रूट्स हैं दे आर मेड बाय दिस चरवाहज, जो गाय भैंस चराते हैं, कैटल उनका है, लेकिन इनको इस्तेमाल करते हैं सभी डकॉइट्स।
वी आर इन यूपी। ओके, और इस तरह का जो ओपन स्पेस होता है लाइक दिस, इसे बड़ा और थोड़ा मिलेगा, अभी और आगे ले चलेंगे। वहाँ पर ये लोग अपना टेंट वगैरह लगाते हैं रेनी सीजन में। और ये जो ऊंचे ऊंचे जितने भी टीले दिख रहे हैं, इन पे इनके सेंट्री पोस्ट बना लेते हैं और वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह रुकते हैं। नॉर्मली गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग रहते हैं, ताकि गांव से इनको इन्फॉर्मेशन भी मिले अबाउट द पुलिस और अबाउट देयर हार्बर्स एंड एजेंट्स। और उसके बाद ये लोग मूव करते रहते हैं एक गांव से दूसरे गांव। ये जो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, और उनके थ्रू जैसे हमको कोई पिन पॉइंट लोकेशन मिलती है गैंग की, तो उस चीज़ को हम लोग मैप में देखते हैं। पहले जो टोपो सीट्स होती हैं उनमें मार्क कर लेते हैं, और हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं विलेजर्स, उनसे भी पूछते हैं कि भाई रास्ता किधर से है, घेरा किधर से डालेंगे तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके अलावा रूटीन पेट्रोलिंग प्लान भी होते हैं हमारे, जो डिस्ट्रिक्ट से हम लोग थानेदारों को थाना लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। 3-3 दिन के प्रोग्राम देते हैं, वो लोग जाकर के नाइट हाल्ट करते हैं एक गांव से दूसरे गांव, और फिर उसके बाद नाइट हाल्ट के बाद फिर नेक्स्ट डे पेट्रोलिंग करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैंने क्या देखा, हम कहाँ जाने कहाँ है। We were amazed at how well oiled the local support system was for this honorable tradition. We would never learn whether the support was at gunpoint or whether it had to be done in order to keep the social traditions alive. हम तो भैया ये नाम सुनते रहो। बताओ नाम, देखे अपने नाम बता दो, देखे नहीं। निर्भय को नाम सुनते, सलीम को नाम सुने, और रज्जन और राम रतन, अपन देखे आंखों से। लवली पांडे किसके साथ? लवली पांडे का नाम भाई साहब हमने अपन ने देखा था। इससे एक प्रेशर माउंट हम लोग करते हैं, एरिया डोमिनेट हम करते हैं, और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जो डकैत गैंग्स हैं वो एटलीस्ट हमारी बॉर्डर में न आ पाएँ, क्योंकि बॉर्डर से यदि दूर रहेंगे तो उनके जो लोकल एजेंट्स, हार्बरर्स हैं या विलेजर्स हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं रहेगा। कांटेक्ट नहीं रहेगा तो किडनैपिंग के जो क्राइम होता है वो भी नहीं होगा। We kept our heartbeats under control until the police patrol that we tagged along with exchanged gunfire with the dacoits. For a while, we forgot to breathe, let alone keep the camera on. ये देखिए, इस तरह से जंगलों में ये लोग डकैतों के लिए खाना लेकर के आते हैं, और ये राइट टाइम में जब कोई गैंग आसपास हो विलेज के, और ये गांव वाले किसी न किसी बहाने, पूजा के बहाने या अपने खेतों के रखवाली के बहाने यहाँ तक आते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट टू कम देयर एट दिस प्लेस। लेकिन ये लोग चले आते हैं और इस तरह से मदद करते हैं। और जब कभी हम लोग इवनिंग में इस तरह से पेट्रोलिंग करके और जाते हैं, तो ऐसे ही एम्बुश लगा करके बैठते हैं, छुप करके बैठते हैं। उससे इनकी आवाज़ों के ज़रिए या दूसरे इशारों के ज़रिए पता चलता है कि गैंग किधर है, उनके आने जाने वाले लोगों का रास्ता किधर से है, गांव कितनी दूर है। That night changed everything for us. The next day, suspicious villagers surrounded us, demanding to know what we were up to. We even had prowlers outside our hotel windows the next night. Stirred but not shaken, we drove through the streets of Bhind, wondering whether the 40-odd gun stores in the area had anything in store for our security. We soon realized how futile that would be. There are as many as 20,000 gun licensees in Bhind alone, more than anywhere else in the country. लोगों को डकैतों से मुकाबला करने के लिए हथियार दिए जाते हैं, लाइसेंसी हथियार, क्योंकि लोग खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, अपना घूमते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अब उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइसेंसी हथियारों को इनको दे देते हैं। कुछ ऐसे लाइसेंसी लोग हैं जो रात में गैंगों के साथ में चले जाते हैं, दिन में फिर वापस चले आते हैं, किडनैपिंग के दौरान भी साथ साथ चले जाते हैं। अब उस समय ये तो पता लगता नहीं है कि कौन इसमें सही आदमी है, कौन गलत आदमी है। We discovered then that SP Meena is fighting the system, fighting with his back to the wall. जो विलेजर्स हैं वो इनके भय के कारण इन्हीं को ज़्यादा मदद करते हैं, पुलिस को कम मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके लोग कुछ पुलिस में भी हैं, जो लोकल सब में है, पुलिस में भी हैं, इनके सेना में भी हैं, जो आर्मी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके सब कुछ सप्लाई किए हैं। हथियार तो साहब साथ नहीं देता है, हथियार तुम जिस साथ नहीं से दे रहा हो हथियार, ये तो हम बताएंगे नहीं किसी को भी।
ये पूछने की बात नहीं है। While we wondered what the incentive could be for these nefarious arms suppliers, we realized how powerful the caste system was in these areas. The honor of one's caste was before all else. Ironically, the Bhind jail is a great equalizer. The community here knows no caste, no creed, no religion. अभी ये जेल के अंदर भी गुट बने हुए हैं? नहीं, जेल बने अपन शुद्ध। जेल में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, कतई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। For many dacoits, living in the ravines is an escape from the police. क्योंकि यहाँ पे भिंड पुलिस का ये नियम है ना कि जिसको एक बार जेल लग गई तो उसको बार बार लगनी है, चाहे वो करे अपराध या ना करे। Others say they are comfortable in jails in a region with little development and few job opportunities. शिक्षा का स्टेटस और शिक्षा के लिए शिक्षक पढ़ने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिले, कोई वर्क तो मिले। पढ़ लिया, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, काफ़ी लड़के पढ़े लिखे बेकार हैं क्यों यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं। यहाँ का जो इंडस्ट्री एरिया एक स्थापित भी हुआ मालनपुर, उसका सारा फ़ायदा ग्वालियर को मिला, भिंड को नहीं मिला। भिंड को कोई फ़ायदा नहीं मिला। Dacoity in Chambal may or may not have been perpetuated by the water of the Chambal river. But as we returned home after consuming a lot of that, we found ourselves hardly more aggressive, in fact more humbled than before.